लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि सी लैंग्वेज एंड पाइथन जो आपने पढ़ी है, दे आर नॉट सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Yeah. You have studied variables, arithmetic operators, and रिलेशनल ऑपरेटर्स. ये जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर दें, वरना सबको म्यूट कर दूंगा. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Okay, so I was talking about the application of C. The main application of C programming for electrical engineers right now is programming microcontrollers. And what are microcontrollers and how to use them, this you will see at the end of the semester, or at the last quarter of the semester. Okay, so let's start with the software part of the course. The software which you will use is Code Blocks, and how to download it. You open Google Chrome and write Code Blocks. So this is the website. You can go to the download section directly, click downloads, and from here click download the binary release. इसको आपने क्लिक करना है. एंड नो नीड टू नोट दीज थिंग्स डाउन. ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप इस लेक्चर को प्लेबैक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. Okay, so after clicking on binary releases, you have many options over here. You have to select the fourth option, this one. इस ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है. ठीक है. और इस फोर्थ ऑप्शन में मज़ीद दो ऑप्शन है. दिस फोर्थ ऑप्शन हैज़ टू sub options, FOSSHub and SourceForge.net. These are basically two websites from which you can download the setup. So I recommend to download the setup from FOSSHub. So FOSSHub को आप क्लिक करें, और FOSSHub को क्लिक करने के बाद according to your computer specification, depending on your computer specification, you have to choose one of these options. So mostly people nowadays have 64-bit Windows installed in their computer. So if you have 64-bit Windows, click on this first option, and if you have 32-bit Windows, click on this option. Clear? So either you click on this or on this option. And how to know how many bits are there, or how many bit operating system are you using? You go to this PC and double click on it, go to computer, and click on system properties. In system properties you can see that the system type of my computer is 64-bit operating system. यानी मेरे कंप्यूटर में 64-bit operating system यूज़ हो रहा है. सो आप लोग अपने अपने कंप्यूटर को एक्सप्लोर करके डिटरमिन करें कि आपका सिस्टम टाइप क्या है. अगर यहाँ पे 32-bit लिखा आ रहा है तो you will select 32-bit over here, and if you are seeing 64-bit written over here, then you will be selecting the first option. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबका? एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? Yes, sir, no problems. ओके, एक क्वेश्चन है, रोल नंबर 42. कैन वी यूज़ विजुअल स्टूडियो? My recommendation is to not use Visual Studio, because when you will be evaluated on this software, Code Blocks. So अगर Visual Studio इस्तेमाल करते हुए कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे. ठीक है. सो Visual Studio इज़ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, वेरी हैवी सॉफ्टवेयर. मेरे ख्याल में कोई 2 GB का सॉफ्टवेयर है, और अगर आपने वो इंस्टॉल करना है हमारे कंप्यूटर्स में, इट विल टेक मे बी 2 or 3 days. सो डोंट डू दिस थिंग, डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स. अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि पाइथन डिलीट कर दें? आपकी मर्ज़ी है भाई, आपने डिलीट करना है कर दें. आप बहुत ही आवाज़ार लग रहे हैं वैसे पाइथन से. यू कैन डिलीट इट.
अगर आपकी कंप्यूटर में जगह नहीं है। ओके, सो when you click on this option, the setup will start to be downloaded from this website. So it will take some time. I have already downloaded this software, so I will not go through this process again. And after downloading, uh, I will see this type of icon on desktop or in any other location where you have saved the setup. ठीक है, सो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये सेटअप को सेव किया, तो इस डेस्कटॉप के ऊपर मुझे ये आइकॉन नज़र आ रहा है कोड ब्लॉक्स के नाम से। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस सेटअप। यू हैव टू डबल लेफ्ट क्लिक। So there are some students who face difficulty, who are facing difficulty in using computer, copy pasting folders, using internet, और बाज़ लोगों को इवैल्यूएशन के दौरान यूएसबी में फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी नहीं आ रही थी। मतलब इतने मतलब आप लोगों को आप लोग पीछे हैं। सो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। आप लोग ज़रा ये कंप्यूटर की जो बेसिक्स है ना ये सीखना शुरू करें। How to copy paste and how to download anything, how to install a software by using its setup and so on. So ये छोटे छोटे बेसिक्स जो हैं ये आपने सीखना शुरू कर देना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट द टीएज ऑफ द कोर्स विच मिस्टर अली शफीक हैज़ ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। सो इसको आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको येस कर देना है, ठीक है। और ये सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई एग्री। कुछ भी चेंज नहीं करना यहाँ पे, नथिंग टू बी चेंज ओवर हेयर। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन एंड माई सजेशन इज़ टू इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस सॉफ्टवेयर इन सी ड्राइव, स्टोर इट इन सम अदर ड्राइव। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को बजाय सी ड्राइव में मैं इसको ई ड्राइव में सेव कर देता हूँ, ठीक है। So just press OK. So now your software will be stored in E drive inside this folder. The name of the folder is code blocks. So code blocks folder will be created automatically. आपको create करने की ज़रूरत नहीं है। So click on install and it will take maybe two minutes to install the software. So आप लोग मुझे फॉलो करें साथ साथ, किसी को मुश्किल तो नहीं पेश आ रही फ़िलहाल? Very basics. Yes sir. No sir. सर कैन यू पेस्ट द लिंक ऑफ द सॉफ्टवेयर? यार मैंने आपको बताया कि आप गूगल में जाएं, कोड ब्लॉक्स लिखें, वहाँ से डाउनलोड करें। सारा कुछ आपके सामने करके दिखाया है। ये देखो, गूगल खोलो, गूगल में कोड ब्लॉक्स लिखो और यहाँ पे आओ डाउनलोड्स में, ठीक है, या डायरेक्टली बाइनरी रिलीज़ में आओ। तो डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़, और इसको क्लिक करने के बाद आपने जो फोर्थ ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके ओके, सो अभी मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता तो तब तक मैं कुछ कोर्स के लॉजिस्टिक्स के बारे में बताता चलूँ। तो अगेन इन दिस कोर्स सेम एज इन पाइथन देयर विल बी 4 evaluations. 2 evaluations will be conducted when you will come on campus for midterm exam, and 2 evaluations will be conducted before the final term exam. Hopefully after midterm exam you all will be coming on campus to complete the rest of the semester. अच्छा, तो do you want to run code blocks now? चलें yes करते हैं इसको and थोड़ा सा, ठीक है, इसको ये जो टिप्स हैं, ये कुछ टिप्स की विंडो खुली हुई है, इसको आपने क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो इम्पोर्टेंट काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने जाना है टूल्स। एक मिनट मैं देखता चलूँ टूल्स में, या हाँ सॉरी सेटिंग्स में जाना है। आपने सेटिंग्स में जाना है और कंपाइलर को क्लिक करना है, ठीक है। सो क्लिक कंपाइलर, ये टूल चेन एग्जीक्यूटेबल्स, इसको आपने क्लिक करना है,
ठीक है, और टूल चेंज एग्जीक्यूटेबल को क्लिक करने के बाद एक दफ़ा ऑटो डिटेक्ट क्लिक करके चेक करें कि कोई मसला तो नहीं आ रहा। सो जस्ट क्लिक ऑटो डिटेक्ट। सो ऑटो डिटेक्ट को क्लिक करने के बाद उसने ये मैसेज दिया आपको, ऑटो डिटेक्टेड इंस्टॉलेशन पाथ ऑफ दिस 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 दिस। सो आपने ये करना है कि इसको ओके कर दें, ठीक है। अगर बिल फ़र्ज़ ऑटो डिटेक्ट क्लिक करने से कोई एरर का मैसेज आता है तो आपने इसको क्लिक करना है, ये डॉट 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 इसको क्लिक करें, और डॉट 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 को क्लिक करने के बाद आपने उस लोकेशन में जाना है जहाँ पे आपने कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया है। तो कोड ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये कोड ब्लॉक्स का फोल्डर जो है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर को क्लिक करना है, तो वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कंपाइलर की फ़ाइल को, ठीक है। तो ये कंपाइलर की फ़ाइल क्या है, ये सब कुछ आप थ्योरी में पढ़ेंगे। आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन द लैब, ठीक है। सो मेरा तो पहले से ही इंस्टॉल्ड है ये कंपाइलर मिन GW, सो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल क्लिक ऑन ओके, और ओके को क्लिक करने के बाद अब मेरा सॉफ्टवेयर जो है, नाउ माई सॉफ्टवेयर इज़ रेडी टू बी यूज्ड, ठीक है। So if you have any question till now, you can ask. So the main thing which you should keep in mind is that after installing the software, you have to go to settings, compiler, and click on this toolchain executables and auto detect. कभी ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, कभी नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो उसका हल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है ना सब? रिस्पॉन्ड करे कोई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, जी जी बताएं कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बोलो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी अभी तक लाइक पाइथन पे ग्रिप बनी नहीं थी एंड सडनली हम एक न्यू लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं, तो पाइथन क्यों नहीं कंटिन्यू करवाएगी हमें? ओके, इंटरेस्टिंगली पाइथन और सी जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 60 to 70% जो है सिमिलर है। वही इफ एल्स, वही वाइल लूप, वही फॉर लूप है, वही फंक्शंस हैं। जो नई चीज़ जो आप पढ़ेंगे ना सी लैंग्वेज में, वो दो तीन चीज़ें हैं, एक है अरे, एक है पॉइंटर और एक स्ट्रक्चर है। दीज थ्री टॉपिक्स विल बी एडिशनल। और कुछ सिंटैक्स का फ़र्क है जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। मतलब वहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके प्रिंट करते थे, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज़ करके आप प्रिंट करेंगे। तो सिंटैक्स एक तो डिफरेंट है पाइथन से, और ये जो तीन एडिशनल टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। सो जो लेट कमर्स हैं, जिनका न्यू एडमिशन हुआ है कोई नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में, सी दिस कोर्स विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन योर ग्रिप ऑन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अगर पाइथन आप समझते हैं आपकी वीक है, दिस सी लैंग्वेज विल हेल्प यू टू strengthen your Python concepts as well as the C concepts. दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो जवाब है आपके सवाल का वो ये है कि पाइथन जो है ना वो इट्स हायर लेवल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। एंड पाइथन जो लैंग्वेज है इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन data science applications like artificial intelligence, machine learning and this and that, ठीक है। क्योंकि artificial intelligence वाली applications में Python यूज़ करना आसान है। आपने कोई ब्रैकेट्स नहीं डालना, कोई सेमीकोलन नहीं डालना, कोई इंट मेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि सी में ज़रूरत पड़ेगी, आप देखेंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाइथन, सी लैंग्वेज इज़ अ लोअर लेवल लैंग्वेज। लोअर लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि यू कैन access the memory and other peripherals of say microcontroller or the computer easily as compared to Python, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज उससे ज़्यादा लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है उसके ज़रिए से आप डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो सी लैंग्वेज जितना लो लेवल लैंग्वेज होगा उतनी उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट्स
इट्स प्रोग्राम्स मोर फास्टर एज कम्पेयर टू पाइथन लैंग्वेज। सी प्रोग्राम्स की जो स्पीड है ना वो ज़्यादा तेज़ है एज कम्पेयर टू पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज जो है ना वो ज़रा हैवी किस्म के होते हैं एंड दे टेक सम टाइम टू रन ऑन द हार्डवेयर और ऑन द माइक्रो कंट्रोलर्स और द माइक्रो प्रोसेसर्स और वट एवर कंप्यूटर सिस्टम्स। लेकिन द ट्रेंड इज़ शिफ्टिंग, मे बी 5 या 10 साल के अरसे में ये जो सी लैंग्वेज है शायद इसका खात्मा हो जाए और सिर्फ पाइथन या दूसरी लैंग्वेजेस आ जाए। ठीक है, तो द मेन थिंग विच यू शुड लर्न इज़ हाउ टू प्रोग्राम। आप प्रोग्रामिंग वाली थिंकिंग जो है वो कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, आज पाइथन है, कल कोई और लैंग्वेज आ जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है रूबी, RUBY, रूबी है। इसी तरह एक लैंग्वेज है जूलिया। ये न्यू लैंग्वेजेस हैं जो आजकल जो है ना वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, आई विल रिटर्न बैक। ओके, सो आप लोगों ने जब भी प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ना है तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आई वांट टू डेवलप द प्रोग्रामिंग थिंकिंग, हाउ व्हाट टू डू सो दैट आई कुड डेवलप एल्गोरिदम्स। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपने उसको कोड की शक्ल में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ द मेन थिंग विच यू शुड लर्न, हाउ टू कन्वर्ट अ प्रॉब्लम, हाउ टू डेवलप एन एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दिस इज़ द मेन थिंग विच यू शुड लर्न इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन लैंग्वेज हो, जो मर्जी लैंग्वेज हो। सो आई होप दैट आंसर्स ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। पता नहीं जिसने भी पूछा, आई डोंट नो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? फिर वही क्वेश्चन है, रोल नंबर 20, कैन वी यूज़ डेव C++? हाँ जी, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें अगर कोई मसला आ गया इवैल्यूएशन के दौरान या कोई और प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है फिर। ठीक है, यू कैन यूज़, आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई मसला नहीं। ओके, एंड ओके, रिमेंबर वन थिंग, ट्राई टू मेक दिस लैब सेशन अ टू वे ट्रैफिक। एक इंटरेक्टिव होना चाहिए आप लोगों को ना, आप लोग पैसिव ना बन के सुनते रहें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप लोग जो है ना वो क्वेश्चंस पूछें, आप लोग जो हैं वो बीच में रोक के भी पूछ सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आई डोंट वांट पैसिव लिसनर्स इन द लैब सेशन। ठीक है, वो ठीक है भाई, ठीक है सब लोग, कोई तो जवाब दे दे। यस सर। हाँ चलो ठीक है। यस मेरा सर। क्वेश्चन है। लेकिन ये कि ज़रा ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के आपने जो है ना ये करना है काम। ओके, यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन था ओके। किसी का? सर ये SSD अगर लैपटॉप में इंस्टॉल की है तो फिर ये सी में सही नहीं है इंस्टॉल करना, क्योंकि वरना स्लो हो जाएगा हार्ड में अगर करेंगे। कर लें आप, अगर आपका SSD ड्राइव जो है, आप सी ड्राइव जो है वो SSD में स्टोर्ड है तो ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं। वैसे भी ये कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके लिए SSD ड्राइव की ज़रूरत हो, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। सर जी ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान अगर थोड़ा फ़र्क बता दें। यार ये फ़र्क जो है ना वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, मे बी इन द नेक्स्ट लैब और उससे नेक्स्ट लैब में बताऊंगा। ये फ़र्क है इसमें ना, इंटरप्रेटर बहुत सारे काम करने के बाद कोड को मेमोरी के अंदर डालता है, जबकि कंपाइलर जो है वो सी कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और मशीन कोड को डायरेक्टली कंप्यूटर जो है वो चलाता है। सो देयर इज़ सम डिफरेंस, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन? 138, अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके। सो सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? यार रिज़ल्ट आ जाएगा यार, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? वैसे आ जाएगा रिज़ल्ट, डोंट वरी अबाउट संडे तक। बट रिज़ल्ट तो आ गया है, जो मार्क्स हैं जो मैंने आपके साथ शीट शेयर की है वो फाइनल है, अब वो अब नहीं चेंज होंगे, वो उसको आप फाइनल समझ लें। नहीं सर, सर बाकी सब्जेक्ट्स का पूछा।
बाकी सब वो आप बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं उनसे रब्ता करें, वो बेहतर बता सकते हैं। सर ए प्लस ग्रेड किसको मिलेगा? ये अभी नहीं बता सकता ए प्लस किसको मिलेगा, बी प्लस किसको मिलेगा, वो अभी मैंने उस पर वर्किंग करनी है अभी। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कोड इन कोड ब्लॉक्स। सो कैसे स्टार्ट करेंगे? ये न्यू फाइल जो है इसको आपने क्लिक करना है, न्यू फाइल, और एम्प्टी फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, आपने लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, दिस इज one new thing which you did not see in Python course, hash include stdio.h। ठीक है, ये आपके टीचर भी बता देंगे आपको, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि by writing hash include stdio.h you are asking the software to include this file। ठीक है, जब आप when you are writing this line and when you will compile it or when you will run the code, you are basically asking this software or the compiler to include this file। ये एक फाइल है, ठीक है, which contains functions like print, scan and so on। so इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल्स जो है थोड़ी देर तक बताऊंगा। ठीक है, सो हैश इंक्लूड stdio.h आपने लिखना है। उसके बाद यू हैव टू राइट int main स्मॉल ब्रैकेट्स। क्लियर है? दिस इज आल्सो वन न्यू थिंग विच यू हैवंट सीन बिफोर। और int main लिखने के बाद आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो यू हैव टू इंसर्ट कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर? 2 कर्ली ब्रैकेट्स should be written or should be inserted। one curly bracket will represent the start of the body of the code। ये body क्या है ये मैंने बताया हुआ है आपको Python के कोर्स में। and this curly bracket represents the end of the body। so whatever you will do or whatever code, whatever command you want to give to the computer, those commands should be written within this main body। the name of this body is main। clear? so any question up till now body के हवाले से, brackets के हवाले से या stdio.h के हवाले से? any question? माइक अनम्यूट करके आप पूछ लें। सर मेन ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका? नहीं मेन सर ये किसी भी कोड को लिखने से पहले लिखना हाँ, पड़ेगा? किसी भी कोड को जो भी आपने लिखना है ना, कोड कोई भी, वो आपने मेन के अंदर लिखना है। इससे बाहर लिखेंगे तो एरर आएगा, ये आपने याद रखना है। नहीं फॉर्मेट यही होगा हाँ, ये फॉर्मेट है। ठीक है, दिस इज वन। अच्छा सर। ये देखें ना, ये एक डिफरेंस है बिटवीन पाइथन एंड सी लैंग्वेज। यस सर। पाइथन में जहाँ दिल किया आपने स्टार्ट कर दिया कोड को, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अच्छा, इसमें देखें इंडेंटेशन का कोई इशू नहीं है। आप चाहें कोड यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे स्पेस डाल के स्टार्ट करें, देयर इज़ नो इंडेंटेशन इशू बिकॉज द कंपाइलर नोज दैट द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 4 एंड द बॉडी एंड्स एट लाइन नंबर 6। ठीक है, कंपाइलर नोज, आपने ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करके कंपाइलर को बता दिया है कि द बॉडी स्टार्ट्स एट लाइन नंबर 4 एंड इट एंड्स एट लाइन नंबर 6। so I want to print a message in C language। to print a message you will type the command print f। ये आपने जहन में रखना है। पाइथन में प्रिंट था और सी लैंग्वेज में क्या है, प्रिंट एफ है। एंड देन स्मॉल ब्रैकेट्स करने के बाद आपने लिखना है कोई भी मैसेज, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, and that message should be enclosed in double quotation marks। it should be enclosed by double quotation marks at the left side and double quotation mark at the right side। so this is your message which you want to print। उसके बाद आपने क्या करना है, you have to insert a semicolon after each command। remember in C language after each command
except for the for statement and if else statement and while statement. बाकी स्टेटमेंट्स के एंड पे आपने सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है, वरना एरर आएगा, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है. So for the time being I just want the computer to print this message. I have no other commands for computer to execute, so there will be only one command in my main body. सारे commands लिखने के बाद after writing all the commands at the end you have to write return 0. ठीक है, रिटर्न 0 लिखने के बाद आपने लिखना है सेमी कॉलन. ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई. सो रिटर्न 0 का मतलब क्या है वो भी मैं थोड़ी देर तक बता दूंगा आपको. सो दिस इज़ द मेन थिंग्स विच यू शुड इंक्लूड while writing any program in C language. This line is very important, this line is also very important, this line is also very important, the brackets are also very important, the small brackets with the word main, these are also very important. So if you miss any of these, maybe your program will not work correctly, maybe you will get an incorrect output. कोई जो है ना आपका क्या है उसको कहते हैं, आपका जो कंप्यूटर है वो पागल हो जाएगा अगर आप इन रूल्स को जो है फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है. सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? 103 कैमरा ऑफ करते हैं. 103 कौन है ये 103? ठीक है, थैंक यू. ओके, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? सर ये इंट लिखना भी जरूरी है? हाँ जी, इंट लिखना ज़रूरी है. जी इंट जी लिखना भी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल. ये प्रिंट एफ के अलावा जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ओके, नाउ लेट, ठीक है. सर हाँ जी बताएं. सर अगर ये इतना ज़रूरी है सर हमारे हर इंटरप्रेटर के अंदर ये डिफ़ॉल्ट के तौर पे क्यों नहीं आता? ये जो जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया उनसे पूछ लें बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं आता. बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हैश इंक्लूड के साथ कोई और फाइल्स भी इंक्लूड करनी पड़ती हैं जो कि शायद आप ना पढ़ें, तो मे बी उनको भी अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करोगे तो फाइल की साइज़ बड़ी हो जाएगी और प्रोग्राम की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. सो इट इज़ अप टू द प्रोग्रामर टू राइट ऑल ऑफ दीज मेन थिंग्स हिमसेल्फ, ठीक है. तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं है, देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, एक बंदे का आई फाउंड इन्वायरमेंट एरर, ये वही आप रोल नंबर 17 वही मसला है आपका. आप ऑटो डिटेक्ट वाला मसला आपका आ रहा है, तो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं उसको आप फॉलो करें तो इन्वायरमेंट एरर वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा. ओके, नाउ हाउ टू रन दिस कोड. ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द आइकन, थर्ड आइकन, build and run. So build and run this program. So click on this, save the file. हाँ, पहला काम हाँ वैसे ये है कि you have to save the file. So let me save the file by the name say first.c, ठीक है. You have to save the file by the name first.c. अगर एक्सटेंशन बेहतर है मेंशन करें. ये .c मैंने लिखा है ना, इट इज़ बेटर टू मेंशन दिस एक्सटेंशन, वरना मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर को ये पता नहीं चलेगा कि ये प्रोग्राम C में लिखा गया है या C++ में लिखा गया. सो द नेम ऑफ द फाइल शुड बी रिटन फर्स्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल .c दिस शुड बी रिटन आफ्टर द नेम ऑफ द फाइल. सो इसको आप सेव करें, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि द आउटपुट हैज़ अपीयर्ड इन द टर्मिनल विंडो, ठीक है. ये ब्लैक कलर की विंडो जो आपको नज़र आ रही है इसको टर्मिनल विंडो कहते हैं. सो दिस इज़ द आउटपुट, हेलो वर्ल्ड. ये आपने प्रिंट किया ना हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड ये आउटपुट पे आ गया. बाकी ये जो प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर आउटपुट पे आपको नज़र आएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. सो लेट मी रिपीट अगेन. आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, click on this icon, build and run, and after doing this what will happen, your black and white code will be converted to colored code.
ये देखें ना, इसके दिस लाइन हैज़ बिन कन्वर्टेड टू ग्रीन कलर, दिस लाइन हैज़ बिन कन्वर्टेड टू ब्लू, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये भी रेड हो गई हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली, करेक्टली, ठीक है। एंड बिल्ड एंड रन करने के बाद द आउटपुट विल अपीयर इन द टर्मिनल विंडो, this black window, the window with black background, and your output will appear over here, and there will be some extra lines, but that is not part of your output, ठीक है। execution time means this program took 0.047 seconds to be executed, ठीक है। so आपके कंप्यूटर में ये टाइम डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर CPU एंड मेमोरी एंड सो ऑन। अच्छा, ये एक प्रोसेस रिटर्न ज़ीरो, ये एक मैसेज आपको नज़र आ रहा है, प्रोसेस रिटर्न ज़ीरो। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता चलूँ कि रिटर्न ज़ीरो जब कंप्यूटर जो है सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और सी प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो दैट सी प्रोग्राम विल रिटर्न ज़ीरो बैक, ठीक है। एंड विल फर्ज assume that if there is some error in your C code, then this zero will not be returned to the computer, बल्कि कोई और वैल्यू रिटर्न बैक होगी। जब when computer will see that the value returned back by the program is not zero, then the computer will know that there is some problem in your C code, and hence it will display some type of error message. So return zero का the meaning of return zero is there is no problem, there is no error in your C code. If the computer receives 0 from your C code, it means that your C code is working properly. इसके बरअक्स, if the computer receives some other value other than 0 from the C code, it means that your C program is not working properly, ठीक है। This is the brief explanation of why do we write return 0 over here, ठीक है। return 0 लिखना ज़रूरी है just to indicate that your C program is working properly, that's it. This is the brief explanation for writing return 0, ठीक है, clear है। so if you have any question you can ask. okay, one question is what is the difference between creating new project and new file। देखो, डोंट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट टिल, आपने सिर्फ न्यू फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है पूरे सेमेस्टर में। जहाँ प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, क्लियर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन। तो भी लिखना जरूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है? रिटर्न जीरो। हाँ, रिटर्न ज़ीरो लिखना ज़रूरी है। इट इज़ अ गुड। अच्छा, रिटर्न ज़ीरो ना भी लिखोगे ना कुछ कंपाइलर्स में, तब भी प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप रिटर्न ज़ीरो लिखो। और रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं उसका बैकग्राउंड जो है ब्रीफली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी बताओ। सर जीरो के अलावा कोई वैल्यू नहीं? नहीं भाई, ज़ीरो के अलावा नहीं लिख सकते, ये रूल है, ये सी प्रोग्राम का रूल है, ठीक है। जिस तरह ये एक रूल है ना कि रेड लाइट पे गाड़ियों को रुक जाना चाहिए, आप गाड़ी चला नहीं सकते रेड लाइट के ऊपर, ये एक रूल है ना। आप बेशक पार्लियामेंट से पास करवा लें कि ग्रीन लाइट पर गाड़ी रुक जाए और रेड लाइट पे गाड़ी जो है वो पास कर जाए, इट्स जस्ट द रूल, आप रूल को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? कैन वी राइट इन द लाइन्स विद, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट 65 रोल नंबर पे आप, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आई। कैन वी राइट इन द लाइन्स विद कर्ली ब्रैकेट्स, ये मुझे नहीं समझ आई, क्या इसका मतलब? आप ज़रा आप माइक में बोल के क्वेश्चन पूछें। ओके, और कोई? सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम पाइथन में एक ही फाइल में प्रोग्राम हाँ को हाँ, सेपरेट ओके, करते थे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप वो काम इधर नहीं कर सकते। इन पाइथन लैंग्वेज यू यूज्ड हैश %% to separate different programs in one file. That thing cannot be implemented in this compiler, ठीक है। वो काम यहाँ पे नहीं हो सकता। Any other question? सर जिस तरह पाइथन में फंक्शन
एक मिनट यार, एक वक्त में एक बंदा बात करे, एक वक्त में एक बंदा। हाँ जी, पाइथन में क्या था? सर पाइथन में जब हम नेस्टेड स्टेटमेंट डालते थे तो वो वहाँ पे फिर इंडेंटेशन उस हिसाब से इंक्रीज होती जाती थी। इसमें नहीं होती, आपने खुद ही करना जो भी करना है, और इंडेंटेशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कल ही नहीं सर, कोई कर्ली ब्रैकेट्स हाँ। हर प्रोग्राम का फिर हर स्टेटमेंट का अलग आएगा। नहीं हर- नहीं नहीं नहीं। अब मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। नहीं, ठीक है, मैं आपको बस थोड़ी देर तक एक और एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ओके ठीक सर। और कोई? सर हम इसमें सी में फंक्शंस भी नहीं बना सकते? बना सकते हैं सी में फंक्शंस। पहले आप ये पढ़ लो प्रिंट कैसे करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शंस तक भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। सारे काम कर सकते हैं सी के अंदर सिवाय प्लॉटिंग के। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इससे आगे चलें फिर। ओके, से फॉर एग्जांपल मैंने एक और मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, और इसमें मैं लिखता हूँ से ABC। ठीक है, ABC मैं लिख देता हूँ और सेमीकोलन डालता हूँ। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, आउटपुट क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आउटपुट? दोनों एक लाइन पे print करेंगे। ओके जी बताओ, आपका क्या ख्याल है, क्या प्रिंट होगा? सिंगल लाइन आउटपुट आएगा सर। सिंगल लाइन आउटपुट आएगा। ओके, अच्छा मैं ब्रीफली जो है ना किसी से भी रैंडमली पूछ रहा हूँ। चले रोल नंबर 1 आप बताओ, आपका क्या ख्याल है? रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 जी सर। आप बताओ, आपका क्या ख्याल है, आउटपुट पे क्या आएगा इस प्रोग्राम के आउटपुट पे? इस पे हेलो वर्ल्ड ABC। कैसे, मतलब दूसरी लाइन में ABC प्रिंट होगा या तीसरी लाइन में प्रिंट होगा, पहली लाइन में प्रिंट होगा, कहाँ प्रिंट होगा? पहली लाइन में प्रिंट होगा। पहली लाइन में प्रिंट होगा। अच्छा ओके, रैंडमली किसी और से भी पूछ लेते हैं। ओके, रोल नंबर 11 चलो आप बताओ, आपका क्या ख्याल है? सर एक ही लाइन में प्रिंट होगा। एक लाइन में प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। कुछ लोग काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट होगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज द आउटपुट। हेलो वर्ल्ड और ABC बोथ द मैसेजेस हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन के ऊपर दोनों मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। दिस इज़ वन अनदर डिफरेंस बिटवीन द सी लैंग्वेज एंड पाइथन। पाइथन में तो अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं तो वो डिफरेंट लाइंस में मैसेजेस को प्रिंट कर देता था, लेकिन वो केस यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। मैनी स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक। वो दे थिंक दैट बाय राइटिंग मल्टीपल or by writing say another print statement, the message will be displayed at the next line, which is wrong. Message will be displayed on the same line. The cursor will remain at the same line. In order to force the cursor to go to the next line, as in Python, you will write \n. ठीक है, so \n लिखने से क्या होगा? Now both the message hello world and ABC they will be printed in two different lines. So hello world first line में और ABC जो है वो second line में print होगा. So keep this thing in mind. Clear? So that's it for today's lab. In experiment number 1, the concepts to be used have been explained already to you. The main concept is printf, and the second main concept is \n. So again I will just revise it within 1 to 2 minutes. Unlike Python, to print anything you will use printf command, not print. And the second thing to remember is the print
the single print statement will not force the cursor to go to the next line. ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक print statement होती and आप इसको execute करते, if you execute this program, this print statement will not force the cursor to go to the next line, which is opposite to the case in Python language. Python language में एक print statement लिखने से cursor next line में automatically चली जाती थी. So you have to keep this thing in mind. Don't confuse Python language and C language. And the third important thing, एक minute. And the third important thing which you should keep in mind is that you have to include or you have to write these 3 lines: hash include, int main, return 0. ठीक है, with brackets. Without these important components or without these important things, your C code will not run properly. Clear? So say for example मैं यहाँ एक ब्रैकेट जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे एक एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, और एरर मैसेज में क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इनपुट. यानी वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कोई चीज़ आए, और वो कोई चीज़ क्या है? कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, सो लेफ़्ट एंड राइट कर्ली ब्रैकेट्स लगाने जो हैं वो ज़रूरी हैं. अगर कोई एरर ना हो प्रोग्राम में और आप उसको बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे कोई एरर का मैसेज जो है वो नहीं आएगा. 0 एरर, 0 वार्निंग. ठीक है, ये इस तरह का मैसेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा. So maybe we can take a break of 5 minutes and when we will return I will explain experiment number 1 और उसके बाद लैब का सेशन जो है वो एंड हो जाएगा. So any question? कोई क्वेश्चन है किसी का? वैल्यू करवाने के बाद प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगी कि नहीं? इसके बाद इधर रिटर्न 0 के बाद वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही. देखो यार, मैंने इस तरह का काम पहले कभी किया नहीं है. चले आपके कहने में कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात. ओके, लुक एट दिस थिंग. ये कैन यू सी व्हाट इज द कलर ऑफ दिस आइकन? कोई बता सकता है? ग्रे. ब्लैक एंड व्हाइट. चले ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे. पहले क्या था? किसी को याद है पहले क्या था कलर? ग्रीन येलो. हाँ, ग्रीन येलो. क्यों अभी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है? कंपाइलर रन कर रहे थे सर. वो हाँ, कंसोल पे कहा हुआ था कहना कि कोई की प्रेस करें तो फिर इस तरह होता है. okay, you have to remember this, that because this window was open, the color of this icon is black and white. ब्लैक एंड वाइट को ख़त्म करने के लिए इस आउटपुट विंडो को क्लोज़ करना पड़ेगा. ये देखें मैंने क्लोज़ कर दिया. क्लोज़ करने के फ़ौरन ही इसका कलर जो है वो चेंज हो गया. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप यही गलतियाँ रिपीट कर रहे हो इवैल्यूएशन में. बच्चे पूछ रहे हो कि सर ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है, ब्लैक एंड वाइट क्यों है. अगर किसी ने ये ब्लैक एंड वाइट पूछा तो मैंने उसको उधर ही ब्लैक एंड वाइट कर देना. ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. एंड ये आप देख सकते हैं कि हेलो वाला मैसेज जो है प्रिंट नहीं हुआ. ठीक है, तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया है. तो मैंने पहले बताया, इफ़ यू वायलेट एनी रूल और एनी यू नो व्हाट यू से, कोई भी रूल अगर आप वायलेट करेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. सो जो भी कोड आपने लिखना है वो आपने इसके अंदर अंदर लिखना है. ये आपने याद रखना है, बाहर नहीं लिखना. यहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है. जो भी कोड लिखना है आपने इसके अंदर ही लिखना है. ठीक है, अगर मैं स्पेस को ख़त्म कर दूँ तब भी ये कोड चलेगा, होपफुली इंशाल्लाह चलेगा. सो इसको रन करें. ये देखें द आउटपुट हैज़ अपीयर्ड ओवर हियर. सो इंडेंटेशन का मसला नहीं है. द इंडेंटेशन विल बी टेकन केयर बाय दीज कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, चाहे आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई फंक्शन बना रहे हो, कोई इंडेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बेहतर है कि आप इंडेंटेशन का ख्याल रखें ताकि सो दैट योर कोड इज़ ईज़िली रीडेबल. ठीक है, इंडेंटेशन का ख्याल रखें ताकि कोड जो है वो रीडेबल हो और अच्छा लगता है. एक कोड में अगर इंडेंटेशन हो तो वो कोड जो है वो खूबसूरत लगता है.
तो क्या ख्याल है, ब्रेक कर लें फिर अभी 5 मिनट्स, उसके बाद लैब मैनुअल को एक्सप्लेन करते हैं। यस सर। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ लिख के नहीं जा सकते जैसे पाइथन में। हाँ मैंने ट्राई नहीं किया ये वाला काम, आप ट्राई करके देख लें। ठीक है, 121 रोल नंबर ने क्वेश्चन पूछा, आप ट्राई करके देख लें, मे बी हो जाए। ओके, रोल नंबर 42 ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट्स की ब्रेक करते हैं। सर हाँ हाँ जी बताओ। सर जो एंड एल वाली स्टेटमेंट होती है वो बैकस्लैश एन की जगह वो यूज कर सकते हैं सी में? नहीं नहीं वो नहीं यूज़ कर सकते, नो वो नहीं कर सकते, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो कर्सर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में रह रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी वो कमांड है ही नहीं सी के अंदर, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके जी चलें, 5 मिनट की ब्रेक करते हैं और इंशाल्लाह फिर वापस आते हैं।
ओके, रोल नंबर 36, क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो पहले जब प्रिंट करवा रहे थे ना हेलो वर्ल्ड, तो तब मैंने वो आंसर देना था कि एक ही लाइन में है क्या, अच्छा अच्छा, उस ठीक टाइम ठीक, किया था। चलो ठीक है, ओके। सर जी जी बोलो। सर ये रिटर्न जीरो स्टेटमेंट सर हम क्यों यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर को बताने के लिए कि आपका कोड जो है वो सही चल पड़ा है या नहीं चल पड़ा। अगर ज़ीरो मिलेगा कंप्यूटर को, इट मीन्स कि आपका कोड सही चल रहा है। अगर कंप्यूटर को ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू मिलेगी, इट मीन्स कि आपके कोड में मसला है और कंप्यूटर जो है वो एरर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। कुछ कुछ बातें जो है ना इंजीनियरिंग की, वो देर से समझ आती हैं, तो अगर नहीं समझ आई कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है समझने वाली। ओके, सो लैब मैनुअल 1 सर को मैं सर ओपन। पाइथन की क्लास में भी एम्प्टी लाइन नो होती है? पाइथन की क्लास में क्या? सर पाइथन की तरह एम्प्टी लाइन इसमें भी इग्नोर होंगी? क्या इग्नोर होंगी? हाँ हाँ, एम्प्टी लाइन इग्नोर होंगे, बिल्कुल एम्प्टी बिल्कुल एम्प्टी लाइन इग्नोर होंगे। ओके, दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 विच आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू इन गूगल क्लासरूम। आपने ये जो फोल्डर है materials shared with students, I have already shared this folder with you people. The link of this folder, the link to this folder with you people in Google Classroom. Go to Google Classroom and check out the link which I shared. So all your lab experiments will be put into this folder. So right now first experiment is present and I will try to download it in order to explain. Okay, so इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये लोड कर रहा है इसको, डाउनलोड। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई होप आप सब लोग मेरे साथ ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने ज्वाइन करके तो सीट जो है वो खाली छोड़ के तो कहीं चले गए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही करते हैं, एंड आई नो ईच एंड एवरी थिंग विच स्टूडेंट्स ट्राई टू डू। दे ज्वाइन द मीटिंग एंड देन गो टू स्लीप, या कोई और लैपटॉप ले लेते हैं और उसमें फिर मूवियाँ देखना शुरू कर देते हैं। सो जो लोग इस तरह की काम करेगा, अगर आप लोग अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तो वही नंबर आएंगे जो पाइथन में आए हैं। सो आई विल नॉट फोर्स यू, आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो स्कूल के या कॉलेज के कि आपकी उंगली पकड़ के आपको जो है ना वो सीधे रास्ते पे लाया जाए, स्पेशली स्टडी के मामले में। और ऑनलाइन क्लासेस में तो वैसे ही बहुत मुश्किल है इंश्योर करना कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो इट्स अप टू यू, यदि आप देख लो, अगर आपने अपने पेरेंट्स के पैसे जो हैं वो हलाल करने हैं, सो लुक, आप स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, एंड मुझे पता है मुश्किलात हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू इट। अगर ये है कि आपने नहीं पढ़ना
आपने बस टाइम पास करना है, एंजॉय करना है तो ठीक है, करो एंजॉय। फिर जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा, उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। सो टफ वक्त ज़रूर है। मैं पर्सनली खुद ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, हमें ये सारा कुछ जो है वो करना पड़ेगा। Okay, so let's start with the experiment number 1. Experiment number 1, the simplest experiment which you will ever get in this semester, I think. So let's start with this experiment. I will explain each question and then you can sign off. Okay, so first question. In this question, you have to determine the output of this code without using the computer. ठीक है, try to determine the output without using the computer. So everyone knows what will be the output. Hello world is the output. This type of question will be asked again and again in future experiments. So first of all, try to determine the output of any program without using the computer. This will help you to develop your programming skills. ये आपने याद रखना है. By reading the code, by reading other people's code, or by trying to determine the output of already available code, these two things will help you to develop your programming skills. ठीक है, clear है? Okay, let's come to question number 2. In question number 2, you have to complete this. Incomplete code such that you get the output as shown over here. Clear? So this is the terminal window or the output window, which contains, you can say, maybe a square or some shape. एक shape है which you want to display at the output, and the code which you should complete to get this output is shown over here. Try to complete this code. Don't change anything else. Don't insert another print statement or something else. Just try to fill these blanks. Try to fill these blanks to get this out. Clear? यहाँ तक किसी को कोई issue? Any issue up till now? Let me change the color of my pen. Red. Okay. सर मेरा फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, वो देख लेते हैं बाद, एक मिनट, वो देख लेते हैं। ओके, डू टास्क 2, कौन सा टास्क 2? ये वाला टास्क। डू दिस टास्क यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी सिर्फ एक सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करके आपने ये जो शेप है, you have to display this shape using a single printf statement. So what you should write over here? What you should write over here so that you get this output. ठीक है, so this is task number 3. Okay, in task number 4, you have to write a program. ठीक है, you have to write a program to print this diamond. This is a diamond of 5 row. You have to display this message as well, and after displaying this message, if you can see clearly that इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। Okay. जी, so there is a space between this first line and the first row of the diamond. So you have to print this message, and then there is a gap of 1 line. After the gap of 1 line, you have to start printing the diamond. So the diamond is a 5 row diamond, and you have to use printf statements to print this diamond. कोई for loop, कोई while loop यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
And in the last question, you have to use a single printf statement to get this output. Use a single printf statement. Use a single printf statement to get this whole output. whole output में क्या है? a 5 row diamond वाला मैसेज है, एक लाइन का गैप भी है और डायमंड है. So this is what you have to do in question number 5. Clear? So that's it for today's lab session, and if you have any question you can ask from me before ending the meeting. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर. चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है. 129. सर मेरा कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ. कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ? सर कोई भी नहीं हो रहा है. वो आपने मेरे ख्याल में कोई, चलें वो आप मेरे साथ शेयर कर लें ग्रुप में, उसको हम देख लेते हैं. ठीक है, ग्रुप में शेयर किया. जो भी मसला है, ये एक बात याद रखो, जो भी कोई भी मसला हो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो. कोई ना कोई जवाब दे देगा, या मैं जवाब दे दूंगा या कोई और ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो जवाब दे देगा. ठीक है, ओके सर. ओके. आई थिंक देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस. सो जस्ट बिफोर. हाँ जी बताओ सर. इसमें हम लोग सेल बना सकते हैं? सेल नहीं बना सकते ना, मैंने बता दिया है, इसमें आप नहीं बना सकते सेल. ओके सर. सर जी सर, जैसे पाइथन में एक बटन था F5, उससे कोड एग्जीक्यूट होता था, इसमें है कोई इस तरह? इसमें होगा. मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट पता नहीं मुझे इसका क्या है, आई डोंट नो. होगा इसका, मे बी होगा. क्योंकि F5 से तो नहीं हो रहा था इसमें. नहीं, इसका कोई और होगा फिर ना. अगर F5 नहीं है तो कोई और होगा. कंट्रोल F10 है सर. कोई और बटन होगा. कंट्रोल F10 सब. ठीक है, जो भी बटन है वो देख लीजिएगा उसको. ओके जी. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आई होप यू पीपल विल टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस कोर्स एंड फॉरगेट वट एवर यू डिड इन पाइथन लैंग्वेज. ठीक है, चाहे आपका रिज़ल्ट उसमें अच्छा आया या नहीं आया, जो भी था आपने उसको अब साइड पे रख देना है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को बिल्कुल एक नए एक बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आपने इसको लेके चलना है. And again, keeping in view of the application of C language, I hope the C language will motivate you, it will create interest within you people. और मैंने एप्लीकेशन इसकी बता दी है आपको कि आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग जो है वो करेंगे. मतलब ऑटोमेशन आप करेंगे. से फॉर एग्जांपल आपने एक डोर जो है वो ओपन क्लोज करना है ऑटोमेटिकली, तो माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे उसके साथ और C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डोर को ओपन या क्लोज कर दें. तो इस तरह की बेशुमार अच्छी एप्लीकेशन हैं C लैंग्वेज के ज़रिए से जो आप कर सकते हैं. एंड स्पेशली फॉर द लेट कमर्स, दिस कोर्स विल हेल्प यू टू strengthen your programming concepts which you failed to gain in Python course. So study it, work hard in this subject. एंड और उन लोगों और वो लोग भी जो पाइथन में प्रोग्राम्स डेवलप नहीं कर सके अपने तौर पे. मतलब अगर उनको कोई प्रोग्राम या कोई प्रॉब्लम दिया जाए, उनको नहीं पता चलता कि प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं, प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश ये है कि आप इस कोर्स को ध्यान से पढ़ो, इसमें मेहनत करो ताकि वो वाली डेफिशिएंसी जो है वो भी दूर हो जाए. सो इट्स नेवर टू लेट. कोशिश करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह आप लोग जो हैं वो कामयाब हो जाओगे. एंड हाँ, यस, दैट्स इट. मेरे लिए और कोई पैगाम नहीं है. मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि आप पढ़ो, मेहनत करो. बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने मेहनत करनी है करो, नहीं करनी ना करो, इट्स अप टू यू. कोई आपको फोर्स नहीं करेगा. सो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग जो है वो लीव कर सकते हैं इस मीटिंग को.
ताकि मैं इसको एंड कर सकूं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो। सर गूगल क्लासरूम का वो पुराना वाला ही यूज होगा या इस दफा दोबारा नहीं, ऐड वो करेंगे जो क्योंकि वो